Assalamu alaikum. Today on 8th April 2021, I'm starting lecture number 2 for week number 6. And today we will solve some probability related problems, and then we will learn how to draw the box and whisker diagram and a histogram for the group data. So these are the three tasks that inshallah we will perform in today's lecture. So let us start from the first problem that we will solve in this lecture. G students. So can you see the slides? Yes, sir. Okay. So that was the last problem that we did in the previous lecture. So now coming to the next problem. The question is that Dom's Pizza Company uses taste testing and statistical analysis before launching their new product into the market. So what are they offering? Basically, they are offering a pizza where we have three different types of crust possible. The first type is the plain thin type. The second type is thin with garlic and oregano. And the third type is thin with bits of cheese. So in these three different types, they offer the crust of the pizza, while for sauces, they offer three different types. The first type is the standard sauces. The second type is a new sauce with more garlic, and the third sauce is a new sauce with fresh basil. So in total, basically, they are offering three different types of crust and three different types of sauces. So now the first question is that how many combination of crust and sauces are involved in this pizza? How many total options are there for a pizza having different types of crust and sauces? So what do you think? What are the total possibilities? The nine. Nine, perfect, because they are offering three different types of crust, and for each different type of crust, they are offering three different types of sauces. Hence, the total becomes three multiplied by three, that is nine. Perfect. So now, in the second part, they are asking basically that what is the probability that a customer will get a plain thin crust with a standard sauce for his first taste test. So they are performing a statistical analysis. Uh, a customer came, they offered him or her to taste a certain type of pizza. He asked to bring a pizza with a plain thin crust and a standard sauce. So what is the probability that he will ask for this type of pizza? He will taste this type of pizza with a plain thin crust and a standard sauce. 9 minus 1. जी क्या कह रहे हैं वन? So 9 minus. नहीं, प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी होती है टोटल में से, यानी इस पिज्जे के चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस. 1/9. 1/9, because out of these 9 different types of pizza, there is only one possibility where a customer can taste a pizza with plain thin crust and standard sauce. So therefore, the probability that he or she will taste such type of pizza is basically 1/9. Okay, so these were the two parts of this question. Now coming to the next exercise. The question is that interest centers around the life of an electronic component. Uh, Students, we all know that whenever we go to an electric shop and buy, suppose, an energy saver, what happens that they give you the energy saver and they stamp the box of the energy saver, and they say that if the energy saver fails within 1 year, you can come back and replace it with a new one. So this is a general procedure that good companies offer. What is the psychology behind this situation? Actually, they have tested their component for thousands and thousands hours. Na? So they know that
their item, their electronic component will not fail within 1 year. So this is the situation that is being given here, that a company says that the electronic component manufactured by this company survive more than 6,000 hours. This happens 42% of the time. That is the probability that an electronic component will survive more than 6,000 hours is 42%. While the probability that it will it will fail before 4,000 hours is very low, that is it is only 4%, that is 0.04. So they have given us that the probability that it will last longer than 6,000 is 42%, and the probability that it will fail before 4,000 or before 4,000 is only 4%. Now they are basically asking a very simple question, that what is the probability that the life of this component is less than or equal to 6,000 hours. So we know that the probability that it will last longer than 6,000 hours is 42%. And now they are interested in the probability that it will last 6,000 or less than 6,000 hours. So students, basically we have a very good property with us in probability, which is known as the negation probability, negation theory. What is negation? If you want to calculate the probability of happening of a certain type of event, then you can calculate the probability that this event will not happen, and then subtract this probability from 1 to get the probability that the event will occur in future. So this is the case in this situation, that we know that the probability that electronic component lasts more than 6,000 hours is 42%. So the probability that it will last 6,000 or less than 6,000 hours is simply 1 minus 0.42, that is 58%. You are getting this thing? It's very simple. They have told us that the probability that the electronic equipment will last more than 6,000 is 42%. Now the question was that what is the probability that it will last 6,000 or less than 6,000? So we know that for more than 6,000, probability is 42%. So for less than 6,000, it is 1 minus 42%, that is 58%. Similarly, in the next question, they are saying that what is the probability that the life of this particular equipment is greater than 4,000 hours. Again, we know that the probability that it will last 4,000 or less than 4,000 is only 4%. So what is the probability that it will last more than 4,000? So it is very simple. We know that for equal to and less than 4,000, the probability is 4%. So for greater than 4,000, it is 1 minus 4%, that is 96% of the time. So again, we applied the negation theory. We wanted to calculate the probability that the electronic component will survive more than 4,000 hours. We knew that the probability that it will survive 4,000 and less than 4,000 hours is 4%. So we subtracted this probability from 1 to get the probability that it will survive more than 4,000 hours. So it is very simple. So these are the two problems that are basically the last two problems of week number 6 exercise. Now we will switch to the onboard lecture, and inshallah we will learn that how to draw the box and whisker diagram and for an ungrouped data, and similarly how to draw the histogram for a group data. So let us unshare these slides, and now I shall open the camera. जी students, can you see the board? जी बोर्ड नजर आ रहा है आपको? तो आज के दिन हमने बोर्ड पे 2 टास्क करने हैं, बहुत ही सिंपल टास्क हैं। पहला टास्क ये है कि वी विल ड्रॉ द बॉक्स एंड व्हिस्कर डायग्राम फॉर एन अनग्रुप्ड डेटा, और दूसरा टास्क ये है
कि we will draw the histogram for a grouped data. तो बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम को हम 5 पॉइंट समरी भी कहते हैं डेटा की ना। क्यों कहते हैं ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले एक अनग्रुप डेटा में लिखता हूं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ पर नजर आ रहा है ना आपको, ठीक है। एक मिनट मैं थोड़ा सा लाइट को इम्प्रूव कर दूं। जी अब मेरा ख्याल है इसकी लाइट बेहतर होगी जी। तो जी डेटा में सपोज हमारा पहला नंबर है 31, फिर है 32, फिर है 35, फिर है 37, फिर 39, फिर 40, ठीक है, फिर है 43, फिर 45, फिर 46, फिर 49, फिर 52 और फिर 55, ठीक है जी। तो इन टोटल ये कितने नंबर्स हो गए जी? जी स्टूडेंट्स कितने नंबर हो गए ये? 12 नंबर्स हो गए, बिल्कुल सही। और पहला नंबर क्या है? 31 और आखिरी नंबर 55 बिल्कुल सही। तो देखिए अब होता क्या है कि हम लोगों ने अगर एक बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम ड्रॉ करनी है तो बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम बेसिकली क्यों ड्रॉ की जाती है? वी ड्रॉ द बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम फॉर a data to have a visual display of the data, that what is its average, what is its maximum value, what is its minimum value, whether the data is symmetrical or it is skewed, and if it is skewed then whether it is positively skewed or it is negatively skewed. So to have a summary of the data, we basically draw the box and whisker diagram. This is the reason that this diagram is known as the 5-point summary of the data. Why? Because in this diagram we identify 5 critical points of the data. Number 1, the maximum number. Number 2, the minimum number. These two numbers basically determine the range of the data. Maximum minus minimum gives us the range of the data. Similarly, we calculate median, that is the 50th percentile of the data, and basically this determines the average of the data. Then we calculate the upper quartile, that is the 75th percentile, which is denoted as Q3. Then we calculate the lower quartile, which is 25th percentile of the data, and denoted by Q1. So these two upper quartile and lower quartile basically decide that whether the data is symmetrical or it is skewed. तो अब हमने क्या करना है कि इस डेटा के भी वही 5 वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपको नजर आ रही है बड़ी आसानी से कि इट इज 55, और मिनिमम वैल्यू भी आपको बहुत आसानी से नजर आ रही है 31। किसी कैलकुलेशन की इसमें जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसका मीडियन। तो मीडियन को हम क्या लिखेंगे? मीडियन को हम लिखेंगे 50th परसेंटाइल। मीडियन होता है 50th परसेंटाइल, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Q2 से। और मीडियन जो है वो एवरेज वैल्यू होती है। तो सबसे पहले डेटा को अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो फॉर्चुनेटली डेटा इज ऑलरेडी इन द असेंडिंग ऑर्डर फॉर्मेट, तो हमें इसको अरेंज तो करना नहीं पड़ा क्योंकि डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में था, वरना हम इसको अरेंज करते। अच्छा, अब जरा देखें कि डेटा में टोटल वैल्यूज हैं 12, तो इसकी सेंट्रल टर्म 1 होगी या 2 होंगी? कौन बताएगा? 2 होंगी। 2 होंगी। तो इसकी जो सेंट्रल टर्म्स हैं वो कौन कौन से नंबर्स होंगे? 39, 40। यानी पांचवा 1 2 3 में बताएं। पहला नंबर होगा, दूसरा होगा, तीसरा, इस तरह से बताएं। 12 नंबर्स हैं, तो वो कौन सा नंबर होगा? 6 और 7। 6 and 7 6 और 7, बिल्कुल सही। तो हम क्या लिखेंगे? we will write that median equals to Q2 equals to x6 plus x7 whole divided by 2। ठीक है जी। तो x6 क्या है आपके पास डेटा में? x6 आपके पास 40,
सर ये मीडियन फाइंड करें कि मीन? याद रखिए ये मीडियन फाइंड कर रहे हैं। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? मीडियन में आप देखते हैं कि टोटल टर्म्स कितनी हैं, और अगर टोटल टर्म्स ऑड हैं तो मीडियन सेंट्रल टर्म होती है, और अगर टोटल टर्म्स जो है वो इवन है तो मीडियन एवरेज ऑफ द सेंट्रल टू टर्म्स होती है। तो यहाँ पर क्योंकि टोटल टर्म्स इवन यानी 12 है, तो मीडियन जो है वो एवरेज ऑफ द टू टर्म्स है, तो सेंट्रल टू टर्म्स है। तो सेंट्रल टर्म्स थी 40 और 43, तो आपका मीडियन आ जाएगा 40 प्लस 43 होल डिवाइडेड बाय 2, और ऑब्वियसली ये आपके पास आ जाएगा 41.5। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा मीडियन। मीडियन को 50th परसेंटाइल भी कहा जाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे लोअर क्वार्टाइल यानी Q1। तो लोअर क्वार्टाइल 25th परसेंटाइल होता है। ठीक है, लोअर क्वार्टाइल जो है वो 25th परसेंटाइल होता है, इसको Q1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखिए अब लोअर क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे क्या, हम डेटा को ना दो जिसे कहते हैं कि पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, लोअर हाफ पोर्शन एंड अपर हाफ पोर्शन। लोअर हाफ पोर्शन में शुरू के 6 नंबर्स आ जाएंगे, और अपर हाफ पोर्शन में आखिर के 6 नंबर्स आ जाएंगे। तो मुझे बताएं कि लोअर हाफ जो पोर्शन है, अगर मुझे उसका मीडियन कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट होगा जी? सर अपर हाफ की टर्म्स को 2 में डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल, देखिए लोअर हाफ पोर्शन के लिए जो आपकी छोटी वाली टर्म्स है 31 से लेकर 40 तक, इनकी सेंट्रल टू वैल्यूज का एवरेज ले लेंगे। तो पहली 6 टर्म्स की जो सेंट्रल टू वैल्यूज हैं वो जाहिर है थर्ड और फोर्थ होंगी, तो हम लिखेंगे Q1 इक्वल्स टू x3 प्लस x4 होल डिवाइडेड बाय 2। तो x3 यहां पर कितनी है जी? 35। 35। तो हम यहां पे लिखेंगे 35 प्लस 37 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 36। तो आपके पास लोअर क्वार्टाइल आ गया जब आपने लोअर हाफ पोर्शन को ये बेसिकली लोअर हाफ पोर्शन का आपने जब मीडियन कैलकुलेट कर दिया। अब हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे अपर क्वार्टाइल जो कि कहलाता है 75th परसेंटाइल। तो अपर क्वार्टाइल के लिए आप अपर हाफ पोर्शन का मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। तो मुझे बताएं कि अपर हाफ पोर्शन की सेंट्रल टू वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 46 and 49। परफेक्ट। और x की फॉर्म में ये कौन से x हैं? X ये 9 9th और 10th x है, बिल्कुल सही। 9 तो हम लिखेंगे x9 प्लस x10 होल डिवाइडेड बाय 2, और आपके पास आ जाएगा 46 प्लस 49 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 47.5। ठीक हो गया? तो इस तरह से आपने वो 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर दिए जो एक बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए होते हैं? सबसे पहले सबसे लोएस्ट नंबर, देन सबसे बिगेस्ट नंबर, देन मीडियन यानी एवरेज ऑफ द डेटा, देन Q1 यानी लोअर क्वार्टाइल, देन Q3 यानी अपर क्वार्टाइल। तो जब ये पांचों वैल्यूज आप कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद इनकी बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम ड्रॉ कैसे होती है? देखिए सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है जी, और आप देखते हैं कि लोअर क्वार्टाइल क्या है। तो लोअर क्वार्टाइल है 36, तो इस बॉक्स के स्टार्टिंग पे आप नंबर लिख देते हैं 36 यानी लोअर क्वार्टाइल। सर थोड़ा कैमरा ऊपर कर दें जी, ठीक है। यस सर, थैंक यू। अच्छा, ये आपने लोअर क्वार्टाइल से शुरू कर दिया। अब आप स्केल के मुताबिक चलेंगे।
तो अब आपने लोअर क्वार्टाइल के बाद आपने आना है किस पर, मीडियन पर। तो देखें 36 और 41 तो तकरीबन 5 का फर्क है। तो हम इसको 8 का रख लेते हैं, 4 का रख लेते हैं। 36 के बाद यहाँ 40 है, तो 40 से थोड़ा सा आगे यहाँ 41 है। तो 41 पे क्योंकि आपका मीडियन है, मीडियन पर एक लाइन बना देंगे, ठीक है। फिर 41 से तकरीबन 6 आगे आपका जो है वो अपर क्वार्टाइल है। तो आप बेसिकली अगर यहाँ पर ये है तो आप समझ लें कि 4 इधर और तकरीबन इस जगह पर आपका अपर क्वार्टाइल है। यहाँ पर आप बॉक्स को खत्म कर देंगे, मुकम्मल कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आपका बेसिकली हो गया 47.5 और ये आपका हो गया था 41.5। अब यहां से आप क्या करेंगे, आपने लोअर और उस पर जाना है, तो तकरीबन इससे 5 यूनिट्स ही पीछे जाएंगे। तो ये जो है आपके पास आ जाएगा इसकी लोएस्ट वैल्यू, और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे क्योंकि ये तकरीबन 8 के करीब है, 55 पे जाना है, तो आपने इसको थोड़ा सा ज्यादा बना दें। यहां पर 58 आ जाएगा और ये इसकी 55 आ जाएगा। तो ये बेसिकली बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम इसकी तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो बॉक्स शुरू हो रहा है वो लोअर क्वार्टाइल से शुरू होता है, बॉक्स खत्म हो रहा है वो अपर क्वार्टाइल पे खत्म होता है, और बॉक्स के अंदर एक वर्टिकल लाइन लगाई जाती है उस जगह पर जहां पर मीडियन होता है, ठीक है। फिर यहां से एक लाइन आगे एक्सटेंड की जाती है मैक्सिमम वैल्यू तक, और यहां से एक लाइन पीछे एक्सटेंड की जाती है मिनिमम वैल्यू तक। लेकिन याद रखें एक्स एक्सिस पर ये सारा ग्रेजुएटेड होता है, अकॉर्डिंग टू स्केल बना होता है, ठीक है। अब मकसद इसका क्या है, अब इस वक्त अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तकरीबन करीब करीब है, ये फर्क है थोड़ा सा, ये इस तरफ है लेकिन तकरीबन करीब करीब है। अगर तो ये ऑलमोस्ट यानी करीब हो बराबर होने के, राइट वाला पोर्शन बॉक्स का राइट वाला पोर्शन और लेफ्ट वाला पोर्शन बराबर हो, तो हम कहते हैं कि ये जो डाटा है वो सिमेट्रिकल है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि डाटा तकरीबन था भी सिमेट्रिकल ही, 31 से लेकर 55 तक वो ग्रेजुअली बढ़ रहा था, कोई बड़ी जंप्स उसमें नहीं थी, तो वो तकरीबन सिमेट्रिकल ही था, ठीक है ना। लेकिन क्या हो सकता है, हो ये सकता है कि अगर आप ये बॉक्स ड्रॉ करें, यहां पर नजर आ रहा है, एक मिनट जरा मैं नीचे करता हूं कैमरा को, देखें अगर आप ये बॉक्स ड्रॉ करें इस तरह, ठीक है जी, और ये सिचुएशन ये हो जाए कि Q3 इधर, Q2 इधर और Q1 इधर, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला बॉक्स का पोर्शन बड़ा है, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला? राइट साइड वाला। राइट साइड वाला। राइट साइड वाला पोर्शन बड़ा है, इसका मतलब है Q3 माइनस Q2 जो है वो Q2 माइनस Q1 से बड़ा है। तो अगर Q3 माइनस Q2 Q1 से बड़ा हो तो हम इसे कहते हैं कि ये डेटा सिमेट्रिकल नहीं है बल्कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। हम क्या कहते हैं कि ये डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है क्योंकि इसमें Q3 माइनस Q2 जो है वो Q2 माइनस Q1 से बड़ा है, ठीक है। इसका क्राइटेरिया बेशक यहां लिख भी दें कि Q3 माइनस Q2 इज ग्रेटर देन Q2 माइनस Q2। जी, स्क्यूड से क्या मुराद है? स्क्यूड का मतलब कि वो एक तरफ झुकाव है डेटा का, डेटा उस तरफ ज्यादा है, ठीक है जी, बात समझ गए। तो देखिए सिमेट्रिकल का मतलब एवरेज से राइट और एवरेज से लेफ्ट दोनों एक तरह है। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब कि एवरेज से राइट की तरफ ज्यादा है। नेगेटिव स्क्यूड का मतलब कि उससे उस तरफ कम है, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि अच्छा इसका उलट भी हो सकता है। इसका उलट क्या हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा इसको और नीचे करते हैं कि अगर हम एक बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम बनाते हैं और होता क्या है कि यू बन जाता है Q3 Q2 और Q1। तो अब मुझे आप बताएं कि कौन सा पोर्शन बड़ा है? लेफ्ट वाला। Q1
लेफ्ट वाला, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये बेसिकली नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है। नेगेटिवली स्क्यूड डेटा, और इसकी रीजन क्या है कि Q3 माइनस Q2 जो है वो लेस देन है Q2 माइनस Q1 से, तो इसलिए ये डेटा जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो ये वो कंडीशंस हैं जो बेसिकली हम करते हैं किसके लिए, डेटा की स्क्रूटनी के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, कि इसकी 5 पॉइंट समरी से हमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि डेटा की एवरेज क्या है, डेटा का रुझान यानी इसकी स्क्यूनेस अगर है तो कितनी है, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, तो वो सारी चीजें हमें इस 5 पॉइंट समरी से भी पता चल जाती है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब यहां पर तो टोटल टर्म्स थी 12, मुझे बताएं कि अगर टोटल टर्म्स 12 ना होती बल्कि 11 होती तो फिर Q2 कौन सी टर्म होती? 6। बिल्कुल सही, कि अगर टोटल टर्म्स 11 होती तो सेंट्रल टर्म कैसे मालूम होती है, 11 + 1 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, तो 6 टर्म मीडियन होती। अब एक और सवाल का जवाब दें, अगर टोटल टर्म्स 11 हैं तो हम अपर क्वार्टाइल के लिए यानी लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या करते? 6 डिवाइडेड बाय 2, ये जो जरा और करें, देखें उसके लिए हम क्या करते, हम जो है वो सेंट्रल टर्म थी हमारी 6 से पहले वाली टर्म्स को लोअर पोर्शन डिक्लेयर कर देते और 6 से बाद वाली टर्म्स को अपर पोर्शन डिक्लेयर कर देते, ठीक है जी। तो 6 से पहले वाली टर्म हो जाती 5, ठीक है, और 6 के बाद वाली टर्म्स भी 5 हो जाती, ठीक है। तो 6 से पहले वाली 5 टर्म्स का मीडियन कैलकुलेट करते तो कौन सी टर्म आती? X3, बिल्कुल सही। क्या देखिए हम क्या करते हैं, हमने हमेशा एक लोअर पोर्शन और एक अपर पोर्शन बनाना था, तो जब आपके पास टोटल टर्म्स ऑड होती है ना तो आप सेंट्रल टर्म को छोड़ देते हैं, ठीक है जी। अब सेंट्रल टर्म 11 में थी छठी टर्म ना X6, तो X6 से पहले वाला 5 टर्म्स वो लोअर पोर्शन है, X6 से बाद वाले 5 नंबर्स वो अपर पोर्शन है, तो X6 से पहले वाले जो 5 नंबर्स हैं जाहिर है उनका मीडियन थर्ड नंबर है, और इसी तरह से X6 के बाद वाले जो 5 नंबर है उनका भी मीडियन जो है उनमें से जो है वो थर्ड नंबर होगा। तो इस तरह से थोड़ी सी विजडम से काम करते हैं कि इवन और ऑड में कैसे हमने फर्क करना है, लेकिन ये बड़ी आसानी से हम एनालाइज कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो ये काम हम कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये जो है वो बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम की तरफ से मतलब इतना कुछ ही मैंने बताना था। अब हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, और वो है कि हाउ टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ अ ग्रुप डेटा, ठीक है ना। तो इसको हम दिखाते हैं, ठीक है, लिख लिया आपने, नहीं भी लिखा तो वीडियो में है आपके पास, कोई मसला नहीं। जी, तो अब आखिरी पे आते हैं, जब हमने क्या करना है कि हम लोगों ने एक ग्रुप डेटा के लिए जो है वो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो सपोज कि हमारे पास एक ग्रुप डेटा है, ठीक है, अपने साथ कॉपी पे लिख लिया करें, आसानी हो जाती है उससे थोड़ी। आपके पास ग्रुप डेटा है जिसमें 2 रोज है, एक रो है एक्स की और दूसरी रो है फ्रीक्वेंसी की। तो एक्स की जो पहली क्लास है वो जनाब 47 से 54 है, फिर आपके पास 54 से 56 है, फिर उसके बाद आपके पास 55 से 58 है, 55 से 58 है, फिर 59 से 66 है, और उसके बाद आपके पास जो है वो 67 से 70 है, ठीक है। पहली क्लास जो है वो x की 47 से 54 तक है, दूसरी क्लास 55 से 58 तक है, तीसरी क्लास 59 से 66 तक है, चौथी क्लास जो है वो 67 से 70 तक है, ठीक है जी। तो पहली क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है,
तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो 8 है और चौथी क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 है, बल्कि 2 कर देते हैं, 2 है। ये वो ग्रुप डेटा है कि जिसका आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम जो है वो इसको, ये हॉरिजॉन्टल डेटा हम इसको वर्टिकल डेटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहला कॉलम हम बनाएंगे एक्स का, पहला कॉलम हम एक्स का बनाएंगे और उसमें डिफरेंट क्लासेस लिख देंगे 47 से 54, 55 से 58, 59 से 66, 67 से 70। ये क्लासेस है, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है और चौथी क्लास है। ठीक है जी। लेकिन जब हम लोगों ने ये पहला ही कॉलम बनाया तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, और वो प्रॉब्लम क्या सामने आ गई कि ये जो क्लासेस है, पहली क्लास शुरू हो रही है 47 से और खत्म हो रही है 54 पर, लेकिन जो दूसरी क्लास है वो 54 से शुरू नहीं हो रही, वो 55 से शुरू होकर 58 पे खत्म हो रही है। तो इसका मतलब है कि पहली क्लास के लिए अगर हम एक बार बनाएंगे हिस्टोग्राम में, तो जब दूसरी बार हम बनाएंगे तो उन दोनों में गैप्स आ जाएंगे, क्योंकि पहली बार खत्म हो रही है 58 पर और दूसरी बार शुरू हो रही है 59 से। तो क्योंकि इन दोनों बार्स के दरमियान एक गैप आ जाएगा, तो याद रखें कि हिस्टोग्राम में गैप्स नहीं हो सकते, हिस्टोग्राम में गैप्स अलाउड नहीं है। तो अब इन गैप्स को एलिमिनेट करने के लिए यहां पर हमें क्लासेस दी हुई थी, जिसकी लोअर क्लास लिमिट 47, अपर क्लास लिमिट 54 थी। फिर अगली क्लास की लोअर क्लास लिमिट 55, अपर क्लास लिमिट 58 थी। फिर अगली क्लास की लोअर क्लास लिमिट 59 और अपर क्लास लिमिट 66 थी। तो मसला क्या हो रहा था कि हमें जो है ना क्लास लिमिट्स जो दी हुई थी उनमें गैप्स थे। तो अब हम क्लास बाउंड्रीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि ये गैप्स जो है वो खत्म हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे? क्लास बाउंड्रीज इंट्रोड्यूस कराने का क्या तरीका है? बहुत आसान है। आप 55 में से 54 माइनस करेंगे। 55 माइनस 54 आंसर आ जाता है 1। 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाता है 0.5। तो 54 में 0.5 ऐड हो जाएगा और 55 में से 0.5 माइनस हो जाएगा। आसान अल्फाज में अपर क्लास लिमिट्स में 0.5 ऐड हो जाएगा और लोअर क्लास लिमिट से 0.5 माइनस हो जाएगा। तो अब आपके पास आ जाएंगी क्लास बाउंड्रीज का कॉलम, और क्लास बाउंड्रीज में आ जाएगा आपके पास 46.5 से लेकर 54.5 तक। इसी तरह से 54.5 से लेकर 58.5 तक। इसी तरह से 58.5 से लेकर 66.5। इसी तरह से 66.5 से लेकर 70.5। तो अब अगर आप देखें तो अपर क्लास बाउंड्री पहली क्लास की है 54.5 और दूसरी क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो भी 54.5 है, तो गैप खत्म हो गया। फिर इसी तरह से दूसरी क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री है वो 58.5 है और तीसरी क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो भी 58.5 है, तो गैप खत्म हो गया। आसान अल्फाज में जहां पर पिछली क्लास की अपर बाउंड्री खत्म हो रही है वहां से अगली क्लास की लोअर बाउंड्री शुरू हो रही है। तो जो गैप्स आ रहे थे हिस्टोग्राम में वो हमने अवॉइड कर दिए, वो हमने खत्म कर दिए। तो इस वजह से याद रखिए कि अगर क्लास लिमिट्स में गैप्स आ रहे हैं तो आपको क्लास बाउंड्रीज का कॉलम इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। और उसको तरीका कैसे है कि कैसे हमने करना है, तो देख ले अपर क्लास लिमिट जो अगली लोअर क्लास लिमिट जो अगली क्लास की है 55, उसमें से आप अपर क्लास लिमिट पिछली क्लास की माइनस करते हैं। 55 माइनस 54 आ गया 1। 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, आ गया 0.5। ये जो 0.5 है ये 54 में ऐड हो जाएगा और ये 0.5 55 में से माइनस हो जाएगा। उस तरह से गैप खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। और ये सिर्फ 1 के लिए नहीं बल्कि ये हर 2 नंबर्स के लिए बात ट्रू है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं कि जब आपने क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बना लिया तो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी का बनेगा।
तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, तो हम लिखेंगे f। पहली की फ्रीक्वेंसी है 4, दूसरी की फ्रीक्वेंसी है 1, तीसरी की फ्रीक्वेंसी है 8 और चौथी की फ्रीक्वेंसी है 2। फिर नेक्स्ट कॉलम जो है वो आपके पास किस चीज का बनेगा? क्लास विड्थ का बनेगा, CW क्लास विड्थ। तो पहली जो क्लास विड्थ है वो 54.5 माइनस 46.5 यानी 8 है। फिर 58.5 माइनस 54.5 4 है। फिर 66.5 माइनस 58.5 तो 8 है। और फिर 70.5 माइनस 66.5 तो ये 4 है। तो आपने चारों क्लासेस की क्लास विड्थ मालूम कर ली। आखिरी स्टेप कि आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मालूम करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। याद देखिए कि आजकल जो मॉडर्न हिस्टोग्राम्स ड्रॉ हो रहे हैं वो सारे के सारे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे ड्रॉ होते हैं। वाई एक्सिस पर जो बार की हाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो पहले की फ्रीक्वेंसी थी 4 और क्लास विड्थ थी 8, तो 4 डिवाइडेड बाय 8 आंसर आ गया 0.5। फिर इसी तरह से सेकंड की फ्रीक्वेंसी थी 1 और क्लास विड्थ थी 4, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई 0.25। इसी तरह से थर्ड जो था फ्रीक्वेंसी भी 8 थी, क्लास विड्थ भी 8 थी, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 आंसर 1। और फिर लास्ट की फ्रीक्वेंसी थी 2 और क्लास विड्थ थी 4, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आ गया 0.5। तो इस तरह से आपने चारों क्लासेस की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी मालूम कर ली। ठीक है जी। अब आखिरी स्टेप पे आप क्या करेंगे? आखिरी स्टेप पे आपने इस हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है। ये वाली जगह नजर आ रही है आपको? यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले वर्टिकल एक्सिस बनाएंगे, वर्टिकल एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिखेंगे। सर नहीं नजर आ रही। ठीक है, ठीक है जी। तो वर्टिकल एक्सिस बना दिया, वर्टिकल एक्सिस पे टॉप पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिख दिया। अब जरा गौर करिए, हमारा x 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, हमारा x तो शुरू हो रहा है 46.5 से। तो जब x आपका 0 से स्टार्ट ना हो रहा हो तो आप ये वाला सिंबल बनाते हैं। कौन सा वाला? ये वाला सिंबल, ये दिखाने के लिए कि आपका x जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि किसी और नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब वो नंबर क्या है? 46.5। तो यहां पर वो नंबर लिख दें 46.5। ठीक है, 46.5 से लेकर 54.5 तक पहली जो क्लास विड्थ थी वो 8 की थी। तो सपोज के 1 स्मॉल डिवीजन 4 के लिए, तो 2 स्मॉल डिवीजन 8 के लिए हो गया, तो ये 8 की हमने एक विड्थ बना दी। इसकी हाइट 0.5 है, तो सपोज करें कि एक स्मॉल डिवीजन 0.5 के बराबर है और 2 स्मॉल डिवीजन जो है वो 1 के बराबर है। तो इसकी हाइट 0.5 है, तो यहां से 0.5 की तरफ यहां चले जाएंगे। तो ये पहली बार बन जाएगी जिसकी विड्थ है 8 और इसकी हाइट है 0.5। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट की विड्थ इससे हाफ है, नेक्स्ट की विड्थ है 4, तो हम उसकी विड्थ इसके मुकाबले में हाफ बना देंगे, यानी इतनी बना लेते हैं। और उसकी हाइट जो है वो 0.25, वो भी इसके मुकाबले में हाफ है, तो हम बना देते हैं ये। ठीक है जी, ये दूसरी बार बन गई जिसकी विड्थ भी पहले की विड्थ के मुकाबले में आधी थी और जिसकी हाइट भी पहले की हाइट के मुकाबले में आधी थी। फिर थर्ड पे जाएं तो उसकी विड्थ दोबारा से 8 है, तो हम दोबारा से 8 बना देते हैं विड्थ। और उसकी जो हाइट है वो 1 है, तो उसकी हाइट हम 1 बना देते हैं।
ठीक है जी, और ये टर्मिनेट हो रही थी कहां 66.5 पर। फिर नेक्स्ट जो है उसकी विड्थ दोबारा से जो है वो 4 है, ठीक है, तो उसकी विड्थ दोबारा से हाफ बना देते हैं, और उसकी हाइट 0.5 है, तो उसकी हाइट हम जो है 0.5 बना देते हैं, और ये खत्म हो रही है 70.5 पर, और उससे आगे जाके हम x लिख देते हैं। तो आपने देखा कि ये हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया, और आप देख सकते हैं कि इस हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं है, और क्योंकि ये हिस्टोग्राम 0 से शुरू नहीं हुआ था, हमने ये वाला सिंबल बनाया है, और इस हिस्टोग्राम की विड्थ जो है वो क्लास विड्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस हिस्टोग्राम की जो हाइट है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से आप डेटा का हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। ये प्रोसीजर है कि जिसके जरिए आप डेटा का हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं जी। सब कुछ समझ आ गया? अच्छा, एक मैं आपको एडिशनल बात बता दूं कि इसी डेटा पे ना आपसे मीडियन मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछी जा सकती थी। अगर डेटा यही दिया हुआ होता, इस पर आपसे पूछा जा सकता था कि इस डेटा की मीन क्या है, इस डेटा की वेरिएंस क्या है, इस डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो देखिए, मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको x इंटू एफ चाहिए होता है। अब यहां पर बंदा सोच सकता है कि ये क्या बात हुई, इसके तो 2x हो गए, एक 47 है, एक 54, मैंने कौन सा लेना है। तो याद रखें कि अगर आपको मीन कैलकुलेट करनी होगी इस डेटा की, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 47 प्लस 54 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। 47 प्लस 54 होल डिवाइडेड बाय 2 कर लें, क्या आंसर आता है जरा बताएं जी, क्या आंसर आता है? 74। 47 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 2 की बात हो रही है मेरे भाई। सर 50.5। 50.5। अच्छा, अब ये x पता चल जाएगा। इस तरह से अगला x कैसे पता चलेगा? 55 प्लस 58 डिवाइडेड बाय 2, वो बता दें कितना आता है जी? 56.5। 56.5। तो आपको पता चला कि इस तरह से आप हर वैल्यू का एक सिंपल x मालूम कर लेंगे। जब सिंपल x पता चल जाएगा तो मीन कैसे कैलकुलेट होती है? समेशन fx ओवर समेशन f से। तो इसी डेटा की मीन भी कैलकुलेट की जा सकती है। इसी तरह से अगर वेरिएंस कैलकुलेट करनी हो तो वेरिएंस कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट होती है? आप एक कॉलम बनाएंगे xf का, एक कॉलम बनाएंगे x स्क्वायर f का, और वेरिएंस होती है समेशन x स्क्वायर f डिवाइडेड बाय समेशन f माइनस मीन होल स्क्वायर। तो वो भी यहां से कैलकुलेट हो सकती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पर बताता जाऊं कि सपोज कोई बंदा ये करता है कि वो 47 और 54 का एवरेज लेने के बजाय वो 46.5 और 54.5 का एवरेज ले लेता है। वो लिखता है 46.5 प्लस 54.5 होल डिवाइडेड बाय 2। तो आपको पता चलेगा कि इससे भी सेम आंसर मिलता है। आप करके देख लें, 46.5 में 54.5 ऐड करें, होल डिवाइडेड बाय Yes, 2, sir. तो आंसर आपको वही मिलेगा जो आपने 47 और 54 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया था। तो इससे पता क्या चला कि ये जो क्लास बाउंड्रीज है ना, क्लास बाउंड्रीज सिर्फ गैप्स को एलिमिनेट करती हैं, लेकिन ये एवरेज को डिस्टर्ब नहीं करती। इसीलिए क्लास बाउंड्रीज बनाना अलाउड है, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज एवरेज को डिस्टर्ब नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ जो हिस्टोग्राम में गैप आ रहा होता है उस गैप को एलिमिनेट कर देती है, जिसकी वजह से हिस्टोग्राम एक कॉम्पैक्ट हिस्टोग्राम नजर आता है जिसमें कोई गैप नहीं होता, और आपको बड़ी आसानी से डिफरेंट चीजों को आप जिसे कहते हैं एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डाटा जो है वो कहां पर आ रहा है? सबसे ज्यादा डाटा जो है वो 58.5 और 66.5 के दरमियान आ रहा है, ठीक है जी, क्योंकि उसकी बार सबसे ज्यादा चौड़ी भी है, उसकी विड्थ भी सबसे ज्यादा है, और उसकी हाइट भी सबसे ज्यादा है, ठीक है जी। तो जो मैक्सिमम डेटा है वो 58.5 से 66.5 के दरमियान लाई कर रहा है, और ज़ाहिर अगर मैक्सिमम डेटा इधर लाई कर रहा है तो इस चीज की चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहीं पर जो है वो डाटा की
एवरेज यानी उसकी मीन भी लाई करेगी। तो पता चला कि हिस्टोग्राम को भी देखने से काफी सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। अच्छा, मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, अगर मीडियन कैलकुलेट करना होगा तो बहुत आसान सी बात है कि टोटल फ्रीक्वेंसी है 4 + 1 5, 5 + 8 13, 13 + 2 15। ठीक है जी। तो अब आपके पास टोटल है नंबर्स 15। ठीक है, तो 15 का जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो होती है आपकी 8th वैल्यू। तो पहली 5 तो आपके पास हैं कहां पर? पहले 2 कॉलम्स में। ठीक है, अब जो थर्ड कॉलम है उसके लिए आप क्या करेंगे? आप 3/8 करेंगे। ठीक है, 3/8 करेंगे। जो आंसर आएगा उसको क्लास विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। करके देख लें, 3/8 करें, जो आंसर आ रहा है उसको क्लास विड्थ से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है आंसर? जी बताएं। 3/8 मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ, वो इत्तेफाकन खुद 8 है तो 3 आ जाती है। तो अब क्या होगा कि 59 + 3, तो मीडियन इसका 62 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये तरीका है एक ग्रुप डेटा का मीडियन कैलकुलेट करने का। ठीक हो गया। तो यहां पर जो है वो आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप अभी पूछ सकते हैं। सर ये 3 कैसे है सर, ये बता दें सर, इसमें जो लास्ट में आपने बताया। ये सिंपल सी बात है कि आपने देखा कि मीडियन जो है वो आपकी 8th टर्म है, क्योंकि टोटल Yes, sir. फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 15 थी ना। तो 15 थी, तो आपने देखा कि 15 + 1 16 आ गया, 16/2 किया 8 आ गया, तो मीडियन आपकी 8th टर्म है। अब पहली 4 टर्म्स पहली क्लास में थी, फिर अगली एक टर्म दूसरी क्लास में थी। तो आपको पता चल गया कि आपकी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ठीक है, 11वीं 12वीं और 13वीं, ये सारी टर्म्स जो है ना थर्ड उसमें है। तो आपने देखा कि जो 59 से 66 तक का पोर्शन है, इसमें से 3 तक का पोर्शन कितनी लोग कवर करेंगे? क्योंकि आपको तो 3 चाहिए थे 8 में से। तो आपने 3/8 प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया। ठीक है, और फिर इस प्रोपोर्शन को क्लास विड्थ से मल्टीप्लाई किया। तो 3/8 क्यों किया? कि आपको इन 8 में से 3 चाहिए थे, तो 3/8 किया। और फिर मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ क्यों किया? क्योंकि 59 से 66 तक जो क्लास विड्थ बन रही थी वो हमारी 8 की थी। तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आंसर 3 आ गया। इस 3 को आपने 59 में ऐड किया तो आंसर 62 आ गया। ये है हमने किया, ताकि हमने प्रोपोर्शन के हिसाब से आंसर दिया। ठीक है जी। ओके सर। तो ये बात है। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। आज की आज जो है आपका कल का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, जो पिछला लेक्चर था। अब ये वाला लेक्चर उसी में वीडियो लिंक 2 के तौर पर मैं अपलोड कर दूंगा। और आपको असाइनमेंट नंबर 1 की डेट एक्सटेंड हुई थी, लेकिन आपको इसी वीक में असाइनमेंट नंबर 2 भी मिल जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप दूसरी असाइनमेंट आप टाइम पर सबमिट करवाएं और उसकी डेट एक्सटेंड ना करनी पड़े। और इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीक मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।